होगी और बाकी लोग भी आ रहे हैं। जी अब्दुल्ला, वो क्लास यस खत्म सर, हो क्लास गई? में एंड। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। जी काइंडली मुझे कंफर्म कर दें स्क्रीन विजिबल है हर एक को। यस सर। Okay, so with this, let us start today's lecture. Today we are going to continue with chapter number 13, kinematics of a particle, force and acceleration. And the topic which we are going to cover today is the last topic of this chapter, which is equation of motion, cylindrical components. Now, before starting today's lecture, just a little announcement regarding quiz number 2. क्विज नंबर 2 आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे वाली जो क्लास है उसमें होगा। जो ट्यूसडे को आपकी 2 घंटे की क्लास होती है, उसका सेकेंड आवर जो है नेक्स्ट ट्यूसडे को, कल वाला ट्यूसडे नहीं, नेक्स्ट ट्यूसडे जो 29 है उसको आपका क्विज नंबर 2 होगा। द टॉपिक मैं आपको बता दूं, इट इज़ गोइंग टू बी काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग विद मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो ये दो टॉपिक्स आपके क्विज नंबर 2 में शामिल होंगे जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। इस वीक हम कंटिन्यू करेंगे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स जो हम आज शुरू करेंगे, और इसी टॉपिक को जो है वो हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके समझने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस वीक के कंप्लीट 3 घंटे हम इसी टॉपिक पे लगाएंगे। और इन केस के टाइम बचता है तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ वर्क एंड एनर्जी एज वेल। Okay, just a quick review of last week's lecture. In this chapter, we started with equation of motion, which is basically summation F equal to ma. At the start of this chapter, we wrote this equation of motion in terms of its rectangular components. That is, we resolved this force as well as acceleration into its components acting along x, y, and z axis. Then in the next topic, we applied the same equation of motion in terms of its normal and tangential components. That is, we resolve these forces and accelerations that are acting on a particle along the normal axis, tangential axis, and binormal axis. Now, today's topic is very much similar to the previous two topics. That is, we are going to apply the same equation of motion, but we are going to write this equation of motion in terms of its cylindrical components. That is r, theta, and z components. The polar coordinates r and theta along with the third axis, which is the z axis. So we are going to rewrite this equation in terms of its cylindrical components. Now, as we have discussed in the previous, at the end of the previous lecture as well, that writing equation of motion or applying equation of motion in terms of cylindrical components is slightly complicated as compared to applying equation of motion in terms of xy or anti axis. The reason being कि जब हम cylindrical coordinates में इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ फोर्सेस होती हैं that are acting along the normal axis. इसके अलावा कुछ आपके पास tangential axis के along forces आ जाती हैं, weight आपके पास negative y axis के along act करता है, और इन तमाम forces को you need to resolve all these forces along the r and theta axis and z axis. So आपको एक साथ तीनों coordinate systems को जो है वो डील करना पड़ता है. That's why आपके पास जो equation of motion है cylindrical components उसके जो है वो थोड़े से complicated हो जाते हैं. So starting with today's topic, how you are going to write the equation in terms of cylindrical components. So for this, let us consider a particle which is moving along a curved path as shown to you in the figure. At any particular instant, this particle is located at position P as shown to you. At this position, this particle is acted upon by an unbalanced force which is being resolved into its components, summation Fr acting along radial axis, summation F theta which is acting along the transverse axis, and summation Fz which is acting along the z-axis. So the total unbalanced force summation F is being resolved into its components along r, theta, and z-axis. So applying the equation of motion, which is summation F vector equal to ma, and then resolving the force into its components along r, theta, and z, it would become summation Fr ur plus summation F theta u theta plus summation Fz uz. Similarly, the acceleration is also resolved into its components mar ur plus ma theta u theta plus ma z u z. Since it is a vector equation, so this equation would be true only if its individual components on both sides of the equation are equal to each other. Therefore, equating the components along the radial axis would give you equation number 1, which is summation Fr equal to mar. Similarly, equating the components along the transverse axis would give you
equation summation f theta equal to ma theta, and similarly along the z axis it will give you summation fz equal to ma z. Now if the particle is constrained to move within the r theta plane only, so अगर ये पार्टिकल प्लेनर मोशन कर रहा है, सिर्फ मोशन आर थीटा एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, जी एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, so it means that there isn't going to be any acceleration along the z axis. Therefore for the third equation you can write summation fz equal to 0. This summation fz equal to 0 does not indicate or does not represent के z direction में कोई force act नहीं कर रही, rather it is representing के z direction में कोई unbalanced force act नहीं कर रही. In other words, all the forces which are acting along z direction are balancing each other. Therefore you aren't going to get any motion along the z axis, and the motion is only along the r and theta axis. So जहां तक ताल्लुक इस थ्योरी का है या इस इक्वेशन का है, तो ये तो एग्जैक्टली सिमिलर है टू द टॉपिक जो कि हमने इससे पहले 2 स्लाइड्स में कवर की हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एंटी एक्सिस. Now how this equation of motion in cylindrical coordinates becomes complicated as compared to the previous 2 topics, उसके लिए थोड़ा सा हम करते ही हैं कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था, वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, अ ब्लैंक स्लाइड. आई होप दैट दिस ब्लैंक स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. हम करते क्या हैं कि वी आर गोइंग टू कंसिडर अ पार्टिकल which is moving along this say slotted path as shown to you in the figure. At any instant आपको इस particle की position दिखाई गई है. Now this particle is moving along the slotted path under the action of an applied force which is a tangential force, say represented by P, which is being applied on this particle along the T axis. So ये वो applied force है P जिसके नतीजे में this particle is moving within the slot जो कि आपको show किया गया है. Now in order to define the axis here, हम करते क्या थे कि r theta coordinates की अगर हम kinematics revise करें, तो this is the r axis which is being defined from some fixed origin O to the particle, और उसको हम extend करते थे तो we are going to get the r axis. इसके मुकाबले में this is going to be the theta axis which is being defined perpendicular to the r axis, और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो r एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज पे हम डिफाइन करते थे. देन सिंस वी हैव एन अप्लाइड फोर्स P एक्टिंग अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस, इसके अलावा आपकी नॉर्मल एक्सिस भी इन्वॉल्व है. वो नॉर्मल एक्सिस क्या होती है? इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व. आपके पास नॉर्मल एक्सिस आ जाती हैं. Okay, now when we are drawing the free body diagram of this particle, we need to isolate this particle from the surroundings. It means कि हम इसके वो तमाम connections जो surroundings के साथ हैं वो ख़त्म करेंगे. अब सबसे पहले अगर हम बात करें weight की, तो the weight of this particle would be acting vertically downward. So weight आपका vertically downward act कर रहा है, which is the minus y axis या minus y axis की तरफ ये act कर रहा है. देन आप जब स्लॉट रिमूव करेंगे आपके पास एक अदद नॉर्मल फोर्स आएगी विच वुड बी एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एन एक्सिस. स्लॉट और पार्टिकल के कनेक्शन को जब आप रिमूव करेंगे, प्लस इस पार्टिकल और स्लॉट के दरमियान चूंकि फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी विच वुड एक्ट इन अ डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट टू द पॉजिटिव टी एक्सिस या नेगेटिव टी एक्सिस की तरफ एक्ट करेगी. आपने इन तमाम फोर्सेस को जो P, F, NC और W हैं, इन तमाम फोर्सेस को रिजॉल्व करना है अलोंग रेडियल एक्सिस इन ऑर्डर टू राइट समेशन FR. इसी तरह आपने इनको ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है. सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस फोर्सेस अलोंग द R एंड थीटा एक्सिस, इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास ये एंगल मौजूद होना चाहिए जिसको हमने, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम एंगल साई की बात की थी, विच इज़ द एंगल बीइंग डिफाइंड टू यू that exists between the tangential and R axis. So unless and until you determine this angle psi, you would not be able to resolve these forces along the R and theta axis. So the major thing here is how to determine this angle psi, because जब तक आपको psi नहीं मिलता आप P फ्रिक्शन फोर्स और NC को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे along the R and theta axis. और जब आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ये समेशन FR और समेशन F थीटा या इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे. सो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दिस एंगल साई विच इज बीइंग डिफाइंड टू बी द एंगल बिटवीन द R एक्सिस एंड T एक्सिस. सो आई होप कि ये चीज समझ आ गई है. देखो साई क्यों इंपॉर्टेंट है. जी सर. Okay, now how you are going to determine this angle psi? The direction of n and f, जिस तरह अभी हमने बात की थी, ये लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, the direction of n and f can be specified relative to the radial coordinate by computing this angle psi, which is defined to be the angle between the extended radial line, ये जो आपकी extended radial line है,
एंड द टेंजेंट एक्सिस एट दैट पॉइंट। सो ये हम एंगल साई जो है उसको डिफाइन करते हैं टू बी द एंगल बिटवीन द आर एंड टी एक्सिस, ताकि आपके पास जो फोर्सेस टी और एन एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेंगे उनको आप आर और थीटा एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकें। Now, how you are going to determine this angle psi? In order to determine this angle psi, consider this figure which is shown to you. This angle psi can be obtained by noting that when the particle, again it is an approximate method, so it can be, this angle psi can be determined by noting that when the particle is displaced from this point to say this point, that is it has traveled a distance ds along this curve, the component of displacement along the radial direction is this component which is termed as dr, whereas the component of displacement along the transverse direction, जिसको मैं से इस blue line से denote करता हूँ, so this is the component of displacement along the transverse direction. This component is basically r sine of d theta, and for smaller values of theta we know that sine of d theta is approximately equal to d theta, so we can write that this component of displacement along the transverse direction is basically r d theta rather than r sine of d theta, because we are considering very small time interval in which delta t approaches to 0. At one instant this particle is located here, at the very next instant when delta t approaches to 0 this particle is located to the next instant. So हम बात कर रहे हैं उस छोटे से इंस्टेंट की जिसमें ये पार्टिकल जो है वो मूव कर गया है फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन, जिसमें आपका एंगल जो सब्सटेंड हो रहा है वो डी थीटा है. सो सिंस दिस कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज आर साइन ऑफ थीटा, एंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज दिस कैन बी रिटन एज आर डी थीटा. तो ये वो कंपोनेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमिन दिस एंगल साई, अगर हम इस अप्रोक्सीमेट राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, so we are talking about this angle psi and talking about this approximate right angle triangle. So we are talking about this approximate right angle triangle जिसमें हमने कहा कि ये आपके पास displacement along the radial direction dr है और along the transverse direction this displacement is r d theta है. Now since this is angle psi, so accordingly this angle would also be approximately equal to psi. So हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास वो एंगल साई है. सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग टेंजेंट साई जो है वो क्या होता है, टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो परपेंडिकुलर इज हियर आर डी थीटा, the base is dr, so basically tangent of psi is r d theta over dr, or we can further simplify it and we can write psi to be equal to tan inverse r को मैं अगर ऊपर ही रखूं, नीचे चूंकि इस केस में r थीटा कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के तौर पे आया हुआ होता है, सो आई कैन राइट इट dr बाय d theta. So this is basically the formula which is going to be used for determining the angle psi. जब आपको angle psi determine करना हो, you can determine this angle psi using this formula which is tangent inverse r over dr by d theta at that particular instant. Now इस formula से जब आप psi determine करेंगे तो you are going to get either psi to be a positive quantity, से positive 30 degrees आपके पास angle आ गया, or it can be a negative quantity. Suppose मैं कहता हूँ ये negative any value negative 30 degrees आ जाता है. So with this formula जब आप psi की value find out करेंगे, it can be either a positive quantity or it can be either a negative quantity. If this psi comes out to be a positive quantity का क्या मतलब है कि आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सिस हैं वो r एक्सिस से उतने एंगल पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो लाई करती हैं. However, if this psi comes out to be a negative quantity, तो negative quantity का क्या मतलब है कि आपकी जो टेंजेंशियल एक्सिस हैं वो r एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती हैं. तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ psi आप अपनी जो टेंजेंशियल एक्सिस है उसका डायरेक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं. दैट्स व्हाई आप जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो बिफोर मूविंग ऑन टू द फ्री बॉडी डायग्राम आप सबसे पहले करते क्या है कि एंगल साई जो है वो डिटरमिन करते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको साई की वैल्यू पता हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उसी हिसाब से फिर इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कहा गया था. आपने कहा कि दिस इज योर आर एक्सिस, आपने आर एक्सिस डिफाइन की टू बी दिस एक्सिस, ये आपके पास आर एक्सिस आ गई, ये आपके पास थीटा एक्सिस आ गई. ठीक है,
अब सपोज आपने रैंडमली टेंजेंशियल एक्सिस ड्रॉ की और आपने कह दिया कि ये आपका टेंजेंशियल एक्सिस है और आपके पास कुछ फोर्स जो है, सपोज ये वाली फोर्स P जो है वो टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही थी। अगर आपने T एक्सिस को इस तरफ ड्रॉ किया है, जब आप इसके R के अलोंग कंपोनेंट्स बनाएंगे तो आपके पास एक कंपोनेंट ये आ जाएगा R पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव। हाउएवर जब आप साई फाइंड करेंगे आपके पास साई नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। इट मींस के आपके पास एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सिस जो है वो यहाँ कहीं लाई करती थी और ये फोर्स यहाँ एक्ट कर रही थी, तो इट मींस के इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे आर पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव। तो ये कंपोनेंट आपने रॉन्गली अज्यूम करके बना लिया पॉजिटिव साइड पे। अब ये एक फोर्स नहीं है, आपकी फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, आपकी एन भी एक्ट कर रही है। तो अगर आपने एक्सेस गलत लिए हैं, साई गलत कैलकुलेट किया है, तो एक्सेस गलत लिए और उस एक्सेस गलत के हिसाब से आपका समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा में सारे कंपोनेंट जो है वो गलत आ रहे होंगे। दैट्स व्हाई वंस you are drawing the free body diagram and applying the equation of motion in terms of cylindrical coordinates, the very first step is you need to first of all find this angle psi, और accordingly उस psi की वैल्यू को देखते हुए you are going to draw the free body diagram के इसमें आपकी t एक्सिस कहाँ लाई करती हैं और उसके हिसाब से फिर आप अपनी फोर्सेस को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इन ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन दिस एंगल साई, और उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर आपने अपनी फ्री बॉडी डायग्राम को करेक्टली जो है वो ड्रॉ करना है। ये एंगल साई हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला टेंजेंट साई इज r ओवर dr बाई d थीटा। पॉजिटिव वैल्यू मींस टेंजेंशियल एक्सिस r एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने एंगल पे लाई करती हैं। नेगेटिव वैल्यू मींस टेंजेंशियल एक्सिस r एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने एंगल के ऊपर लाई करती हैं। इस बेसिस के ऊपर फिर आप जो है वो अपनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे और जो आपकी अननोन क्वांटिटीज हैं उनको जो है वो डिटरमिन करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। सो आपने रैंडमली फ्री बॉडी डायग्राम पे जंप नहीं करना है जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अप्लाई कर रहे हो। काइंडली पहले आप साई फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू को देखते हुए आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बना रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप रैंडम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मे बी आपकी टेंजेंशियल एक्सिस लाई ही दूसरी साइड पे करती हो, तो वो आपकी सारे कंपोनेंट जो है वो गलत आ रहे होंगे जब आप समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये एक एडिशनल स्टेप है जो कि हमें करना पड़ेगा। ये स्टेप बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्वॉल्व नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि वहां जनरली हमारे पास फोर्सेस उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रही थी, तो हमें एक कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का एंगल आपस में डिटरमिन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हमें ये एडिशनल स्टेप साई की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी पड़ती है। Okay, this slide is familiar to all of you. You are all familiar with this slide कि ये वो equation, ये वो examples और problems हैं जो कि हम क्लास में करेंगे। आज probably हम एक या दो examples कर रहे होंगे और फिर remaining examples और कुछ practice problems जो है वो हम solve करेंगे in our tomorrow's class, और फिर कल की क्लास में हम जो है वो अगर टाइम बचा तो वर्क एनर्जी को भी जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। Okay, one more thing which I want to explain here is कि सॉरी, ओके, आई होप कि ब्लैंक स्लाइड दोबारा विजिबल है हर एक को। यस सर। चलें हम उसी फिगर को कंसिडर करते हैं। मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास पार्टिकल है जो कि स्लॉट में मूव कर रहे हैं एंड दिस स्लॉट इज बीइंग गिवन टू यू एज अ हॉरिजॉन्टल स्लॉट। ठीक है, अब आपके पास इस केस में ये जो स्लॉट है ये एक हॉरिजॉन्टल स्लॉट है। हॉरिजॉन्टल स्लॉट मींस अगर आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है या कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो इसका कीबोर्ड का जो सरफेस है एक तरह से ये वो सरफेस है जिसके ऊपर ये स्लॉट बनी हुई है और ये पार्टिकल इस सरफेस में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स P। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि इस पार्टिकल की जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और आर थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो ये इसकी फोर्स P है जो कि अभी हमने कहा था टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग लाई करती है। इसके अलावा आपने फिर एक्सिस सिस्टम डिफाइन किया आर और थीटा। ये आपके पास वो एक्सिस आ गई जो कि हमारे पास आर एक्सिस आई और थीटा एक्सिस आई, और अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो ये एन और टी एक्सिस आ गई जो कि इससे पहले हमने कहा था एन और टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आर और थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओके, आपके पास ये स्लॉट हॉरिजॉन्टल है। इन व्हाट डायरेक्शन द वेट वुड बी एक्टिंग with respect to this r theta plane? The motion is occurring in a horizontal plane,
So what should be the direction of weight with respect to that horizontal या r theta plane? सर बस डाउनवर्ड नहीं करेंगे यार। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा रीमॉडल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक सिंपल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड अ पार्टिकल इज मूविंग विद इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जी वेट किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा होगा? वाई नहीं यार देखो, मैं कहता हूँ आपके पास 3 डायमेंशन प्लेन है, एक्स वाई जी, तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हैं। जी पार्टिकल एक्स वाई में मोशन कर रहे हैं, वेट किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा होगा इस सूरत में? सर नेगेटिव जेड। नेगेटिव जेड की तरफ। तो अगर आप समेशन एफ एक्स लिख रहे हैं या समेशन एफ वाई लिख रहे हैं, तो क्या उस एफ एक्स और एफ वाई में आप वेट के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे? इस केस में नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? जी वो के उस लॉन्ग एक्सेस में ही नहीं आ रहा, वो जेड के Because लॉन्ग the एक्ट कर रहा है। weight is acting perpendicular to the xy plane. Yes, That's why you are not including weight in summation fx or summation fy. Rather, आप summation fz जब लिखेंगे तो उसमें weight को शामिल करेंगे, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको यही कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दूं, मैं कहूं एक्स वाई जी के अलावा ये अब जो मोशन हो रहा है वो आर थीटा जी में हो रहा है, लेकिन आपका जो आर थीटा प्लेन है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये सारे के सारा मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। इट मींस के आपकी आर एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, थीटा एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, एन और टी एक्सिस भी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। इन अदर वर्ड, ये स्लॉट जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी ये स्लॉट बना हुआ है जिसमें ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। अब इस सूरत में क्या समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा में आपकी फ्री बॉडी डायग्राम पे क्या हमें वेट शो करना चाहिए? सर स्लॉट तो फिक्स्ड है ना, वर्टिकल ऊपर नीचे तो नहीं ना होगा? स्लॉट इज फिक्स्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जी नहीं सर, वेट नहीं काउंट होगा। तो वेट शामिल नहीं हुआ। इट मींस दैट इफ आपके पास प्रॉब्लम में गिवन है दैट द पार्टिकल इज मूविंग विद इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, then for equations of summation fr and summation f theta you should not include weight in these two equations because weight would be acting perpendicular to this r theta plane which is the horizontal plane, because आपकी r और theta axis इसी horizontal plane में define होंगी और आपके पास जो है वो weight इस plane के perpendicular act करेगा। That's why you should not include any component of weight in your summation fr or summation f theta axis. Is this point clear to all of you? जी सर। सर यानी जब अच्छा, उसने now कहा हॉरिजॉन्टल है तो हाँ, जो हमारे पास वेट है वो इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा? into the page होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल स्लॉट, इन दैट केस आपकी ये आर और थीटा एक्सिस जो है ये इसी वर्टिकल प्लेन में बन रही होंगी। देयरफॉर आपको अपना वेट जो है वो इन इक्वेशन में शामिल करना होगा। समेशन एफ आर वाली इक्वेशन में भी वेट का कंपोनेंट आएगा, समेशन एफ थीटा वाली इक्वेशन में भी वेट का कंपोनेंट आएगा। इन अदर वर्ड्स, इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद इन अ वर्टिकल प्लेन, जैसे कि मैं कहूं कि ये लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने वर्टिकल प्लेन है, ये स्लॉट भी इसी वर्टिकल प्लेन में लाई करता है। अब जब आप समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा लिखेंगे तो आपको वेट के भी कंपोनेंट्स आर और थीटा एक्सिस के लॉन्ग बनाने पड़ेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो आपने क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना है। अगर तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा में डब्ल्यू नहीं आएगा। अगर तो वर्टिकल प्लेन में वो मूव कर रहे हैं तो देन समेशन एफ आर और समेशन एफ थीटा में आपका वेट भी शामिल होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। यस सर। चलिए, अब थोड़ा सा हम अपनी इस इक्वेशन इस साइड पे वापस आए। एग्जांपल्स आपकी ये वाली शामिल हैं, प्रॉब्लम्स आपकी ये वाली शामिल हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल हम आज सॉल्व करेंगे। आज चूंकि 1 घंटे की क्लास है जिसमें से शायद 25 मिनट्स हो चुके हैं, बाकी जो बचा है टाइम उसमें हम एक आध एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। आसान वाली जो एग्जांपल है एग्जांपल 13-10, उसके बाद जो बाकी मुश्किल एग्जांपल्स और देखिए वर्टिकल प्लेन्स की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि उसमें वेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, कि एडिशनल फोर्स आ रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल प्लेन वाली इक्वेशंस के साथ जो है वो उनको हम सॉल्व करें, लेकिन वो जाहिर है कल की क्लास में होगा। आज हम एग्जाम्पल 13-10 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रेलिवेंट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। Okay, the example is shown to you. The statement says you have a smooth 0.5 kg double collar. Now, what does this word
word smooth indicates? Frictionless. It means that you shouldn't include friction in your analysis. So this collar is smooth. Now what does this double collar shows? क्या होता है ये double collar? सर डबल कॉलर में ये है कि जो रिंग के ऊपर भी ये एज अ कॉलर अटैच हुआ हुआ है और दूसरा जो रॉड के ऊपर है वो भी कॉलर ही अटैच हुआ हुआ है एक और। बिल्कुल, यानी बेसिकली दो कॉलर्स में जोड़ा हुआ है। आपके पास ये दो कॉलर्स हैं और इनको दरमियान से आपने पिन जॉइंट कर दिए है। अब जब आपने दरमियान से इसको छोटा सा पिन जॉइंट लगाया इनके ऊपर, तो पिन जॉइंट किस किस्म की मोशन अलाउ करता है? रोटेशन। रोटेशन अलाउ करता है। इट मींस के आपका ये कॉलर जो है, ये जो ऊपर वाला कॉलर, ये वाला कॉलर है, इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस आर्म ए बी, वेयर आपके पास ये जो सेकंड कॉलर है, इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस सर्कुलर रॉड। इज दिस डबल कॉलर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ओके, अब हो क्या रहा है इसमें, मैं इस स्क्रीन को दोबारा साफ करता हूँ। ओके, आपके पास ये जो डबल कॉलर है, इट इज free to rotate on this arm AB as well as on this circular guide rod as shown to you in the figure. Now this arm AB जो है, it is being pinned from this point. ये जो arm AB है आपके पास, ये इस point पे pin हुआ हुआ है, which is point A. अब मुझे थोड़ा सा आप एक बात बताएं कि अगर मैं किसी एक rigid body को उसके किसी एक point से pin कर दूं, pin means के ground कर दूं, what type of rotation, what type of motion is possible in that rigid body? तो बस रोटेट करेगा वो। Rotate करेगा about point ए। A. So whenever you pin joint or whenever you fix one point of a rigid body, the only motion which is possible in that rigid body is that of rotation about that fixed point. So अगर मैं इस arm AB की बात करूं, इसको मैंने point A से fix कर दिया, it means के this rigid body AB can now rotate about point A in this particular fashion. Now it is given to you that this rigid body is rotating in a counterclockwise direction with a constant angular velocity of 3 radians per second. So ये rigid body 3 radians per second के साथ rotate कर रही है about point A. यहाँ तक point clear है रेक को? क्लियर सर। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, मैं कहता हूं कि इस आर्म AB के आगे मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है, which is say this particle shown to you in the green color. Now due to rotation of this arm AB, this arm would be exerting some force on the particle. ऐसा ही है? जी। अब अगर मैं एक और काम करूं, मैं इस पार्टिकल को एक स्लॉट में बंद कर दूं, तो इस आर्म की रोटेशन की वजह से ये पार्टिकल जो है वो स्लॉट में मूव करेगा, isn't it? जी सर। यस सर। सो इट मीन्स के हमारे पास ये जो आर्म ए बी है, ये इस पार्टिकल को एक तरह से पुश कर रहा होगा इस स्लॉट में मूव करने के लिए, इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सर। what should be the direction of this force which this arm is exerting on the particle? What should be the direction? नॉर्मल टू एबी। नॉर्मल टू ए बी. सो आपके पास नॉर्मल टू ए बी मीन्स बेसिकली वो ये जो आपका कॉन्टेक्टिंग सरफेस है ए बी और इस पार्टिकल का, इसके नॉर्मल वो फोर्स एक्ट करेगी. सो इट मीन्स के इस केस में चूंकि रोटेशन उस तरफ है, तो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट दिस आर्म इज एक्सर्टिंग ऑन दिस पार्टिकल. ये क्लियर हो गया रेको कि ये वो फोर्स है जो कि ये आर्म एक्सर्ट कर रहे हैं इस पार्टिकल को, पुश कर रहे हैं इस पार्टिकल को टू मूव इन द स्लॉट. इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि दिस ए बी इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन रादर देन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो देन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गोइंग टू बी दिस वन व्हिच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ए बी. ये पॉइंट क्लियर है रेक को? जी सर। So whenever a rigid body is pushing another particle or another rigid body, the direction of this force is going to be perpendicular to the contacting surface. यहाँ तो चूंकि आपके पास particle और rigid body है, तो इनका contacting surface आपके पास ये आ जाएगा और accordingly आपके पास जो है वो ये उस force का direction आ जाएगा. अब थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को दोबारा क्लियर करते हैं और इस क्वेश्चन को आप दोबारा गौर से पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है. ओके, आपके पास एक स्मूथ कॉलर है 0.5 kg का, एंड इट कैन फ्रीली स्लाइड ऑन दिस आर्म ए बी एज वेल एज दिस सर्कुलर गाइड रॉड. जिस तरह अभी हमने बात की थी कि डबल कॉलर है तो वो ए बी पे भी स्लाइड कर सकते हैं और आपके पास इस सर्कुलर रॉड पे भी स्लाइड कर सकते हैं. दिस आर्म is rotating with a constant angular velocity of 3 radians per second in a counterclockwise direction.
you need to determine the force which this arm exerts on the collar at the instant when theta is 45 degrees. Motion is occurring in a horizontal plane for this particular problem. So आपके पास ये जो सारे के सारा motion है, it is occurring in a horizontal plane. I hope that now the question is clear to all of you. जी सर. Okay, now once the question is clear to all of you, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले, ऑल्दो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम मैं ना भी बनाऊं या वो साई ना भी फाइंड आउट करूं, मुझे कॉमन सेंस बता रही है कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक जो एक्सेस आती हैं ये मेरे पास आर एक्सेस आ जाएंगी. थीटा एक्सेस मैं कैसे डिफाइन करता हूं? सर इसके परपेंडिकुलर. सो इसके परपेंडिकुलर मैंने ये वाली एक्सेस जो है वो डिफाइन कर दी, थीटा एक्सेस. तो ये तो आर और थीटा एक्सेस मेरे पास आ गई हैं. कॉमन सेंस मुझे क्या कहती है, टेंजेंशियल एक्सेस में कैसे डिफाइन करता था? इट इज बीइंग डिफाइंड टू बी द एक्सेस व्हिच इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट. इट मींस कि अगर आपके पास ये कर्व है और ये कॉलर इस इंस्टेंट पे यहाँ मौजूद है, तो ये एंगल अगर 45 है, इट मींस कि मेरे पास जो टी एक्सेस हैं वो ये वाली एक्सेस आ जाएंगी. ऐसे ही है जो ग्रीन से शो की हुई है. जी सर. अच्छा, अब अपनी इस चीज को वैलिड करने के लिए मेरे पास इसका मतलब क्या है कि ये टेंजेंशियल एक्सेस आर एक्सेस से किस डायरेक्शन में लाई करती हैं? नेगेटिव साई. तो मेरे पास साई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 45. नेगेटिव आनी चाहिए. सो जब मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ जस्ट फॉर काउंटर चेक, यहाँ तो मुझे ऐसा जरूरत नहीं है कि यहाँ तो मुझे कॉमन सेंस बता रही है कि ये 45 है, तो इट मीन्स कि ये एंगल भी मेरे पास 45 ही होना चाहिए. लेकिन वो फॉर्मूला क्या कहता है, साई की वैल्यू मुझे किससे मिलनी चाहिए? टेन इनवर्स आर ओवर डी आर बाय डी थीटा. ऐसा ही है. ओके, व्हाट इज आर हियर? 0.4. 0.8 cos of theta. So r is 0.8 cos theta. So accordingly, what should be dr by d theta, the first derivative of r with respect to theta? Cos का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus sign. Minus sign. So accordingly, it would become minus 0.8 sine of theta. So once you put the value of theta to be equal to 45 degrees, you are going to get psi to be equal to minus 45 degrees. What does this negative sign shows? This negative sign shows कि आपकी जो टेंजेंशियल एक्सेस हैं वो आर एक्सेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाई करती हैं rather than in a counter clockwise direction. Is this point clear to all of you? एक तरह से वैलिडेट कर रहे हैं कि आपका साई जो इस फॉर्मूले से आ रहा है और एक्चुअली आपकी टी एक्सेस जो है वो एक दूसरे के कंसिस्टेंट होनी चाहिए. क्लियर है? जी सर. Okay, now what should be the direction of n axis? सर टी के परपेंडिकुलर. Perpendicular to T. T के perpendicular, and what should be its positive side? Upward. Why upward? आप normal axis को toward the center नहीं लेते थे? भूल Yes. गए क्या? Yes, sir, yes. So normal axis is always defined towards the center of curvature. So center of the curve आपकी जो है वो इस तरफ पड़ती है. So this is accordingly your n axis. Now your free body diagram can be drawn because आपके पास ये चारों एक्सेस आ गई हैं. रेडियल एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस जो एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे हैं, टेंजेंशियल एक्सेस है, नॉर्मल एक्सेस जो एक दूसरे के 90 डिग्रीज हैं. सो आई होप के द 4 एक्सेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को इन एक्सेस के हवाले से कोई सवाल जो पूछना चाहते हैं? So shall we move on to the free body diagram now? जी सर. Okay, in order to draw the free body diagram, we need to isolate this double collar from its surrounding. It means कि हम इसके connections को जो है वो remove करेंगे. अच्छा, ये डबल कॉलर के कनेक्शंस को रिमूव करके सबसे पहले हमें कौन सी फोर्स इस पे शामिल करनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम पे? उसका This arm, traction force. this arm AB would be pushing this collar on this circular rod. So एक तो वो आर्म की फोर्स है जिसको मैं एफ ए बी कह लूँ, एफ आर्म कह लूँ, जो भी कहना चाहूँ, तो वो किस डायरेक्शन में आनी चाहिए हमारी पिछली डिस्कशन के हवाले से?
थीटा। तो अभी बात हुई थी कि आपके पास चूंकि ए बी इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, सो इट मींस कि ये कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन। और चूंकि आपके पास आर एक्सिस ये हैं, थीटा एक्सिस ये हैं, तो एक तरह से ये फोर्स आपकी थीटा एक्सिस के अलोंग आएगी। तो इस थीटा एक्सिस के अलोंग आपने एक फोर्स बना ली, जिसको आपने कहा कि दिस इज फोर्स ए बी, या फोर्स ऑफ आर्म विच दिस आर्म इज एक्सर्टिंग ऑन दिस कॉलर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्म। क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, एनी अदर फोर्स विच यू थिंक के फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए? सर कॉलर का वेट। The motion is occurring in the horizontal plane. So if it is occurring in the horizontal plane, it means that the weight would be occurring perpendicular to this r theta plane. So if it is acting perpendicular to this r theta plane, आपके free body अच्छा diagram ये पे ये weight नहीं नहीं है, आएगी। फ्लैट है, इधर रिंग है। क्या चीज? हाँ अच्छा मतलब नहीं, टेबल के ऊपर vertically पड़ा हुआ खड़ी हुई बिल्कुल। है। यानी आपका अगर टेबल की बात करें तो ये सर्कुलर रॉड टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, सो एनी अदर फोर्स विच यू वांट के आनी चाहिए? व्हाट अबाउट जब आप सर्कुलर रॉड यहां से रिमूव करेंगे, उसका क्या आएगा आपके पास? सपोर्ट रिएक्शन। सर्कुलर रॉड जब रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फोर्स आएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस सर। चलिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आपके पास एक सर्कुलर रॉड है, ये वाली, और इसके ऊपर आपने सिंपल एक कॉलर चढ़ाया हुआ है। ठीक है, जब आप इस कॉलर की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आप इस रॉड को रिमूव करेंगे, ऐसा ही है? दोनों नंबर लेके बैठे हुए हैं, वो भी एक नंबर कटवाया की वजह से अपनी गलती से काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर दें जो ये आवाज आ रही है, वरना फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा। हाँ कसम खुदा की ये हालत थी। मैंने क्या करा ओके, आई होप कि आवाज आ रही है सारों को। जी सर। चलिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि हमने डिफाइन कर दी आर एक्सिस जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में आ गई थी, हमारे पास थीटा एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास टेंजेंशियल एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन, और अकॉर्डिंगली हमारे पास नॉर्मल एक्सिस आ गई थी विच इज इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद फिर हमने कहा था कि हम जब इस आर्म की फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ आर्म से, और वो एक्सिस थीटा एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगी। तो दिस इज एफ ओ ए, जो कि या एफ ए बी या एफ आर्म, जो भी आप कहना चाहें, जो कि ए बी आर्म एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन दिस कॉलर। दूसरा, जब आप इस कॉलर और इस सर्कुलर रॉड के कनेक्शन को रिमूव करेंगे, बात इस पे हो रही थी, तो आपको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी दैट शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एक्सिस। तो नॉर्मल एक्सिस के अलोंग मैंने इस एन सी को जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है ये चीज? जी सर। ये एंगल मेरे पास 45 था, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी मेरे पास 45 होगा। सो अब मैं करता क्या हूँ कि ये मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, ये साई मैंने फाइंड आउट किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द रेडियल एक्सिस। रेडियल एक्सिस के अलोंग जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस आर्म वाली फोर्स के दो कंपोनेंट जो आ रहे हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो रेडियल एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा। ऐसा ही है या कोई गलत कह गया हूं मैं? सुनने गौर से। बेसिकली आई एम अप्लाइंग समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर। इट मीन्स कि मैं इस एन सी को आर और थीटा एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करूंगा। आर एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो नेगेटिव साइड में बन रहा है, तो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दिया। सो समेशन एफ आर इक्वल टू एम ए आर। समेशन एफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो एक ये फोर्स है जो थीटा एक्सिस के अलोंग है, और इसके अलावा एक ये एन सी का कंपोनेंट है जो थीटा एक्सिस के अलोंग है नेगेटिव साइन के साथ। तो मैंने इन दोनों फोर्सेस को शामिल कर दिया, एफ आर्म और एन सी along with ma theta. So I hope that this equation of motion is now clear to all of you. यस ये सर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है? बाकी कहानी काइनेमेटिक्स है। आई होप के चैप्टर 12 याद होगा आप लोगों को। आर डॉट आर डबल डॉट कैसे फाइंड करते थे?
R is given to you as 0.8 cos theta. R dot क्या आ जाएगा? 0.8 sin theta into theta dot. R डबल डॉट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे, भूल तो नहीं गई ये चीज? क्लियर है सर, याद है याद है। याद है। सो आप जब थीटा वाले इंस्टेंट पे ये वैल्यूज लगाएंगे आपको आर, आर डॉट और आर डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में थीटा डबल डॉट क्या होगा? थीटा इंटू थीटा डबल डॉट, एक मिनट, कांस्टेंट है ना, जीरो हो the जाएगा। arm is rotating with a constant angular velocity of 3 radians per second. So that's why theta double dot, which is the angular acceleration, the first derivative of theta dot, it is going to be equal to 0. तो theta double dot 0 हो जाएगा। आपके पास accordingly r, r dot, r double dot आ गया। ar, a theta की values आ जाएंगी by using these formulae जो already हमने kinematics में पढ़े थे। ar is r double dot minus r theta dot square. A theta is r theta double dot plus 2r dot theta dot. So अब जब AR और A theta की वैल्यू आपको मिल गई, now you have two unknowns NC and F arm. So once you solve these two equations simultaneously, आपको दोनों unknowns की वैल्यू जो है वो इस इंस्टेंट के लिए मिल जाएंगी। Is this point clear to all of you? बाकी मैथमेटिक्स है, आप काइनेमेटिक्स अप्लाई करें, AR A थीटा फाइंड करें, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपको दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। Is this point clear to all of you? यस सर। हमने आसान वाली एग्जाम्पल से स्टार्ट किया क्योंकि टाइम शॉर्ट था। कल थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हो सकता है कहीं स्प्रिंग्स को भी इन्वॉल्व कर लें, कहीं हम वर्टिकल प्लेन कंसिडर कर लें, तो एडिशनल फोर्सेस आपके पास आ रही होंगी, स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगी, आपके पास वेट भी आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड, तो ये सिस्टम मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम तफसील के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो फार इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रेलेवेंट टू इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कोऑर्डिनेट्स और दिस एग्जांपल 13-10 आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि स्टिल हमारे पास 2 मिनट हैं, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जांपल यू कैन आस्क। So no question. Shall I stop the recording of today's class? यस सर। चलिए रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप